We will do second adjustment of capital. I'm taking one question for doing this particular adjustment. First adjustment we did on the basis of X and Y, old partners capital account. We calculated Z's capital. We studied that how to calculate X and Y's capital. Then we add up capital of X and Y. New partner is coming for 1/5 share. Remaining share for X and Y will be 1 minus 1 by 5, 4 by 5. For 4/5 share, for example, if the capital is 50,000, the firm's capital will be 50,000 into 5 upon 4. And then Z's capital will be 1/5 of total capital. So in this way, we calculated new partner's capital on the basis of X and Y. Today in the second adjustment, we will cover on the basis of Z, on the basis of new partner's capital, we will adjust capital of old partners. So in this particular question, we have been given that Raghu and Rishi are partners and Rishabh is admitted for 1/4 share and he brings 50,000 as capital. Goodwill of the firm is valued at 42,000 and Rishabh will bring his share of goodwill in cash. Remember, this is firm's goodwill. Question को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बेटा. We need to read the question very carefully. This is firm's goodwill. Rishabh will bring only his share. That is 42,000 into 1 by 4, 10,500. And you all know that when new partner brings goodwill in cash, that is to be distributed amongst all partners Raghu and Rishi in sacrificing ratio. So we need to calculate sacrificing ratio also. Second point, goodwill. Third point, buildings appreciated by 20%. Debtors were good, यानी कि provision की requirement नहीं है. And 10,000 liability included in creditors not likely to arise. Creditors decrease हो रहे हैं. Profit है. Provision की requirement नहीं है. Profit है. Building की value increase हो रही है. Profit है. तीनों ही cases में profit है. CDE तीनों revaluation में post होंगे. New ratio question में हमको given है 2:1:1. New ratio given है, old ratio given है. We will calculate sacrificing ratio, right? Sacrificing ratio will be old ratio minus new ratio. 3/5 minus 2/4, 2/5 minus 1/4. Sacrificing ratio is 2:3. Firm goodwill 42,000 into 1/4, 10,500. 10,500 is to be divided among Raghu and Rishi in 2:3 and we'll get this 4,200 and 6,300. After calculating this premium amount, we will prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet. When we prepare revaluation account, building was appreciated. बेटा 98,000 की बिल्डिंग है, 20% से अप्रिशिएट हो रही है, तो 19,600 का प्रॉफिट हो रहा है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है बाय प्रोविजन. क्रेडिटर्स को पे नहीं करना. प्रॉफिट है 10,800. देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 37,400 विच इज डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो. सिर्फ प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा. रीवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, गुडविल, ओल्ड गुडविल, दैट इज टू बी रिटर्न ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो. 3:2 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड. कैपिटल में गिवन है बेटा 1,19,000 and 1,12,000. लुक एट द बैलेंस शीट. कैपिटल्स गिवन है 1,19,000 and 1,12,000. जनरल रिजर्व गिवन नहीं है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है. अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता, सपोज कहते हैं इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 हो गई, तो बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000 में से 3,000 हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डिक्रीज करते एंड रिमेनिंग 1,000 हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते इन ओल्ड रेशियो. नाउ वी विल डिस्ट्रीब्यूट फुल 4,000 इन ओल्ड रेशियो. एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, रिमेंबर स्टूडेंट्स, कभी भी डिवाइड नहीं होता अमंग्स द पार्टनर्स. इट बिलोंग्स टू एम्प्लॉयज. ये एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है जो उनकी सैलरी में से डिडक्ट हुआ था एंड दे विल गेट दिस प्रोविडेंट फंड ऑन देयर रिटायरमेंट.
ये पार्टनर्स में डिवाइड नहीं होगा, फंड को देख के इसको डिवाइड नहीं करना बेटा. So we will prepare, after preparing revaluation account, we will prepare partners capital account. First of all, buy balance brought forward, revaluation का profit निकाला पोस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो गया, और प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड हो गया. कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, ऋषभ इज ब्रिंगिंग प्रीमियम, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रघुस कैपिटल अकाउंट टू ऋषिज कैपिटल अकाउंट, बाय प्रीमियम डिवाइड कर दिया. ये बैलेंस कर दिया बेटा, यह है 1,48,040, 1,34,860 एंड 50,000. यहाँ तक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. ये जो बैलेंस आपने कैरेट डाउन किया, क्लोज किया, दिस इज ब्रॉट फॉरवर्ड. क्यों ब्रॉट फॉरवर्ड किया? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है दैट इट इज डिसाइडेड दैट कैपिटल ऑफ रघु एंड ऋषि will be adjusted on the basis of Rishabh's share of capital. Rishabh is bringing 50,000 capital for 1/4 share. So what will be the total capital? 2 lakh. And this 2 lakh is to be divided in new ratio. तो 2 lakh into 2/4. बेटा अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं होगा तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन में हमको गिवन है 2 lakh into 2/4, 2 lakh into 1/4, 2 lakh into 1/4. That is 1,50,000 and 50,000. And any excess or deficiency will be made up by withdrawing or bringing in cash by the concerned partner as the case may be. क्या मीनिंग हुआ इस स्टेटमेंट का? हमने न्यू कैपिटल डिसाइड कर दिया भाई ABC, या कहें रघु, ऋषि एंड ऋषभ. ऋषभ इज ब्रिंगिंग 50,000 कैपिटल, ही इज गेटिंग 1/4. ऋषि कहेगा मेरा भी तो कैपिटल शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है, तो मैं 50,000 से ज़्यादा कैपिटल क्यों रखूं, मेरा भी कैपिटल 50,000 कर दो. ऋषि कहता है मेरा कैपिटल 50,000, रघु कहता है मेरा 1/2 है, मतलब डबल देन ऋषि एंड ऋषभ, तो मेरा भी कैपिटल 1 लाख ही रहेगा. वेयर एज कैपिटल ऑफ रघु एंड ऋषि वॉज मोर देन दिस, तो इनके कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए हम इनको पेमेंट कर देंगे 2 कैश. अगर क्वेश्चन में कहते हैं कि कैश से एडजस्टमेंट नहीं करना, करंट से एडजस्टमेंट करना है, तो यहाँ 2 कैश की जगह आएगा बेटा 2 करंट अकाउंट. 2 करंट अकाउंट लिखेंगे बेटा कैश की जगह, राइट. यानी कि वी आर लायबल टू पे दिस अमाउंट टू रघु एंड ऋषि. अगर यहाँ 2 करंट लिखेंगे तो लाइबिलिटी में आएगा करंट अकाउंट, हमें रघु और ऋषि को पेमेंट करनी है 48,040 एंड 84,860 की. और अभी क्वेश्चन में हमको बोला है कि एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी ब्रिंगिंग इन बाय कैश और पेमेंट हो जाएगी, तो अभी हम पेमेंट कर देंगे. तो 2 कैश आया बेटा. तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या तो कैश से होगा या करंट से होगा. इन केस ऑफ एनी डाउट कॉल मी, आस्क मी. अब ये जो 2 कैश आया बेटा, इस 2 कैश का एडजस्टमेंट किस में होगा? मेरे पास 77,000 कैश पहले से था बिजनेस में. न्यू पार्टनर इज कमिंग इन, he is bringing 10,500 for premium, 50,000 he is bringing in for capital. ये वो कैश लेकर आया, इसको प्लस कर लेंगे बेटा 1,37,500. और ये जो पेमेंट करी हमने 48,040 एंड 84,860, दैट इज टोटल अमाउंट 1,32,900. And this remaining figure 4,600 is my closing cash balance. So how to calculate closing cash balance? In case of any doubt again ask me. जो मेरे पास कैश आया उसको प्लस किया बेटा, माइनस जो मैंने बिजनेस में से पेमेंट कर दी. डेटर्स में प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने प्रोविजन को ख़त्म कर दिया. इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं थे. बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी बेटा 20% से, प्लांट एंड मशीनरी में नो चेंजेस. इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर एसेट साइड. एंड ऑन द अदर हैंड लाइबिलिटीज साइड में देर इज अ चेंज. क्रेडिटर्स में 10,800 डिक्रीज हो रहा था. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में कोई चेंजेस नहीं थे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हमने पूरा डिवाइड कर दिया बेटा अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. और कैपिटल्स न्यू कैपिटल जो रघु, ऋषि और ऋषभ के हैं. एंड इन दिस वे टोटल ऑफ बोथ द साइड्स आर इक्वल, राइट. तो फर्स्ट एडजस्टमेंट when new partners capital is not given, we need to calculate that. Second adjustment, when new partners capital is given in the question, he is bringing 50,000 for 1/4 share,
and capital will be adjusted on the basis of Rishabh's capital in their profit sharing ratio. So please revise it. Do question number 82 to 90 for adjustment number second. सेकेंड एडजस्टमेंट के ये क्वेश्चन है बेटा 82 to 90 और फर्स्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है 75 to 81. राइट, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एंड प्लीज आस्क योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच.